तारीख है 2 दिसंबर 2022 समय हो गया है 1111 Today date is 2nd of December 2022. Now recently we dealt with Israel for latest and advanced air defense system because earlier we checked Israel that Israel is not secure because of after the Imran Khan's threat to he will wipe out the Israel because they have nuclear arsenals. So since then we are very hardly working and so many companies were in line to supply the arsenals. But we checked Israel and we dropped a fake nuclear bomb, a cassette in Israel, and the Israeli defense forces are not capable to stop it. Since then, we are working very hard and we are in mood to do something which is incapable to stop nuclear attack on Israel. Now, the subject is recently I ordered to finalize a deal with Israel for latest and world's best and advanced air defense system. Now the subject is so many other nations is now in worry that like a Palestine and Syria, but I think so that maybe the Syria will not interrupt the deal. Yes, I supply the deal to Syria, but the internal interest of the Syria may be possible they will use their old asset to stop us to finalize the deal. Just it's a crucial time. Yes, I'm talking to a lady from AJ Positive News Channel, and to the team of those news channel. Yes, it's a very crucial time because some other nations. Air Force will try to stop us. I ordered to send my double strength F-35 squadron, and we will occupy the IDF airstrip. And I especially ordered to IDF and Israeli Air Force that be in your office, don't worry, we will take care. Maybe the possibility they will occupy the airfield and will not allow us to land our Hercules with arsenal and other equipments. So maybe the possibility in the little bit a mesh will happen there. We don't care. First, we will drop their beacon called a center point. So, as we drop a center point, for a laser center point, from the satellite, we will create air defense system completely created by a special high frequency net. It's a kind of a matrix kind of, so that every F-35 or a radar system will connected with each other. So because of that beacon, they will not allow us to do this. Once we will succeed in to drop that beacon, we will win the deal. So this is next 30 minutes is really very hard for not for us, for them. We have enough arsenal. If Syria or Palestine or Saudi Arabia will try to occupy the deal and will stop us, or maybe the possible because they are very much near. I ordered F-35 my double squadron from the Chhatarpur because 30 minutes flying time is from Chhatarpur to Israel. Yes, we will go from here. Means Chhatarpur to via Bihar and Bihar to Israel. This is the we are taking a route. Now the same thing happened when we delivered world's best and advanced air defense system to Ukraine, and that time it was a kind of thing was really a biggest means a mesh was there. Even the Russia ordered to their passenger jets to drop, to crash on the Ukraine airfield. No, we created, and it's working very good. And same here in India, as with their allies of NATO, Pakistan was not allowing Indian Air Force to install world's latest and advanced air defense system in Delhi. And NATO was threatened us so many times that ever we try to purchase any arsenal which is out of from their
their list of companies, they will not let to finalize the deal with us. Okay, we'll see. Then I created a company called Dasavtar, and I brought all latest equipment here in Delhi. And now Chhatarpur airfield is air defense system is working perfectly, and we have a world's best and advanced air defense system who are incapable to stop nuclear war, and any nation will not able to succeed to drop a nuclear bomb on us. So since then we are working very hard, and yes, we succeed, and we have now in India means 35, 38, 41 world's best and latest airfields, military air bases, world's best air force. Means if we compete, definitely if we compete with United States of America and Britain, yes, we are number one in world. Yes, United States of America is also have a best air force, but we are number one in dealing with so many nations to supply our arsenal. I'm the world's best and number one arms dealer, and my company name is Das Avtar. And this is my second time world's best, and no, third time. This is my world's best and super win. And it is really, you believe me that this is third time. Yeah, first time I installed world's best air defense system in Delhi, and second time in Ukraine, and third time we are starting our project in Israel to secure Israel. Yes, it's a very good for all of us. And in just 30 minutes, let's see. Abhi, the problem is it's a arms dealing. It's a total game of arms dealing. We received a request, and we received a contract option from Pakistan also. But because of I'm in a business, and I'm an Indian citizen, I was stuck in a very dramatical confusion that I'm a businessman. I will not I can't deny, because it's a business principle. I can't deny to supply any kind of arsenal to Pakistan also. But because of the payment, because Pakistani army approached me and they asked me to supply 15 lakh crore rupees arsenal to Pakistan. I said okay. I think it's really a mess for me, because I'm a world's number one businessman, and it's a business opportunity. But I'm Indian. How it could be possible for Indian army was watching me like this? अब क्या करेगा ये? बट आप देयर से एक पता क्या कहते, सीधा सीधा बोलते, ये देते बेच मत दिया, बता रहे तेरे को. I'm a businessman. It was a really opportunity for me, and if I deny the deal, then it will be a breach of protocol, and the world's topmost arms dealer will be take a objection in it. So I said okay, I'm ready to supply, and I ordered to supply us uh, 15, no, it's in starting 7 trillion US dollar deal was in Pakistani rupees, 7 trillion. But the payment time, as I said, then you have to send a payment to me. Then the Pakistani government and Imran Khan was not beyond his words, and actually they were not succeeding to reach the timeline of the payment. And in this condition, we are very much strict on this. And then I said, if you are not, then we will issue a penalty on it. Then the deal will reach up to, I raised it to 40 lakh crore rupees, Pakistani rupees. But we waited for next 20 days even. Not a 1 day or 2 day, next 20 days. But they denied to give the payment. Even I sent the 400 S 400
50 vehicles to Pakistan from Gwadar port also, and so many other arsenals we dropped there. And all was secure in our custody, but they did not give the payment. They were means they were saying that yes, we will give you something kind of means. So then I said okay, and it was a mile again, and I brought the Arsenal to here GMR Terminal 3 airport, and it was a mile again. Since then, we directly in open meeting, I said to all arms dealer in world's meeting that I'm extremely sorry. I will not next time deal with the Pakistan, because it's really a 14 trillion Pakistan rupees deal, and they are not giving the payment on time. And since then, none of them is objecting any kind of deal of mine in any nation. So this is the thing. And now in हिंदी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है इसराइल के साथ एक डील करी है। मैंने करी है, मेरी एक कंपनी है दशावतार, विश्व की सबसे बड़ी आर्म्स डीलिंग कंपनी है। तो एक्चुअली क्या था कि हमने कुछ देशों में जो है एक ऐसा ड्राई रन लिया कि जिससे थोड़ा सा खली बली तो मची थी, पर हाँ ये ज़रूर है कि वो अपने आप में बड़ा ड्रामेटिक था। वो एक ऐसा टेस्टर था जिसको चेक करना बहुत ज़रूरी था। हमने क्या किया, इसराइल के ऊपर जो है एक न्यूक्लियर बम गिराया, और वो एक्चुअली वो एक डामी था, एक कैसेट था, उसमें कुछ था नहीं। कई जगहों पे, कई देशों में मैंने चेक किया जहाँ न्यूक्लियर डील होनी थी, मतलब जहाँ से आर्सेनल की डील होनी थी। तो जब इसराइल पर ड्रॉप किया गया तो इजरायली एयरफोर्स जो है उसको हटाने में कामयाब नहीं हो पाई, उस अटैक को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। तो उसी बात को हमने बेस ले करके हमने जो है इसराइल के अंदर ये डील रखी थी कि आप जो है क्या कहते हैं, ये देखिए ये हुआ क्या है। तो बहुत कंपनियों ने जो है कहा कि हम करते हैं। तो मैंने कहा सर हमने तो आपको करके दिखाया है, आप रोक नहीं पाए। आपको मैं एक ऐसी जगह दिखाता हूँ, आप यहाँ पे जितने भी आर्म्स डीलर बैठे हुए हैं वो लोग ट्राई करके देख ले, अगर उनमें दम हो तो दिल्ली पे जो है एक बार अपने फाइटर जेट्स बेच के दिखा दें। क्यों फाइटर जेट्स, अगर चाहे F-35 हो चाहे B-2 बॉम्बर हो, आप एक बार भेज के दिखा दो बस। अगर वो क्या कहते हैं इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को अगर ब्रीच कर पाए तो उस दिन से ही डील लगी हुई थी। पर बिकॉज ऑफ, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान को धमकी, उसको इसराइल को धमकी दे दी थी कि वो इसराइल को धरती के नक्शे पे से मिटा देगा, और उन्होंने कुछ आर्सेनल जो है बहुत संभाल के भी रखे हुए। तो ये अपने आप में जो है ना, बहुत ही अपने आप में एक मैं देखो, मैं तो बिजनेस मैन हूँ, मैं तो अपॉर्चुनिटी देखूंगा, मुझे तो पैसा कमाने से मतलब है। ठीक है जी। तो अब आज अभी थोड़ी देर पहले हमने डील फाइनल करी है इसराइल के साथ। वर्ल्ड की मतलब बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम की डील है, और वो न्यूक्लियर अटैक रोकने में कैपेबल है। तो डील साइन हुई है। तो अभी यहाँ से मैंने अपने 2 स्पेशल स्क्वाड्रन F-35 के भेजे हैं। तो अब वहाँ पे भसड़ जो होने वाली है वो भसड़ क्या है मैं बताता हूँ आपको। भसड़ ये है कि अब हमारे F-35 को वहाँ का एयरफील्ड ऑक्यूपाइड करेंगे हम सबसे पहले। तो मेरे F-35 और हरकुलिस को वहाँ लैंड कराने से रोकेंगे ये लोग। तो कुछ भी हो सकता है, हालांकि क्रूशल टाइम तो है, मेरे लिए नहीं है, इनके लिए तो बहुत है। हम तो इनकी इनकी वो रेल बनाएंगे ना, ठीक है, क्योंकि आर्सेनल की कमी नहीं है, हथियारों की हमारे पास भी कमी नहीं है। तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया या सीरिया या पैलेस्टाइन है नज़दीकी नेशन, यहाँ से पाकिस्तानी एयरफोर्स है। तो इसराइल का, क्योंकि इसराइल जो है मतलब आक्रामक देश नहीं है, मतलब वो अटैकर नहीं है वो लोग। तो इसराइली एयरफोर्स जो है अटैक तो करेगी नहीं, वहाँ डिफेंस में है, पर उनके पास जो है क्या कहते हैं अभी वो सिचुएशन नहीं है। तो शायद हो सकता है 3 या 4 देशों के लोग जो है क्या कहते हैं वहाँ का एयरफील्ड ऑक्यूपाइड करें, में लैंड ना करने। तो मैंने तो यही बोला कि मैंने कहा तुमने लैंड करने नहीं दिया तो हम तो मार देंगे भाई। ठीक है, इसराइली एयरफोर्स को हमने बोल दिया आप लोग आराम से अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठिए, हमारे जेट्स आ रहे हैं, डील फाइनल हो चुकी है। किसी भी समय जो है वहाँ पे मेरी टीम जाएगी, वहाँ पे अभी अभी जो 2 स्क्वाड्रन जा रही है वो तो वहीं रुकेगी 10 दिन के लिए। ये दोनों स्क्वाड्रन वहाँ रुकने के बाद जो है 10 दिन तक सारी चीज़ें प्रिपेयर करेगी, उसके बाद फिर वापस आएगी। फिर जो ब्रांड न्यू जेट्स हैं इसमें जो है डील जो फाइनल हुई है, क्योंकि जो स्टॉक में हमारे पास है, अभी नया स्टॉक खुलेगा, ये भी लेटेस्ट ही है। तो पहले तो डी 250 250 F-35 हैं, और 100 F-22 हैं, और F-16 280 फाइटर जेट्स जो है अनलिमिटेड आर्सेनल के साथ में। मतलब युद्ध के दौरान हम हथियार नहीं ख़त्म होने देंगे।
तो अब जो अभी हमारे पास जो रेडी स्टॉक में है, 215 तो F-35 हैं, और 180 F-22 हैं, और F-16 280 लास्ट स्टॉक है, वो सप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसको रोकने के लिए जो है ये सोच रहे थे कि मतलब हम लोग जो है यहाँ से पाकिस्तान के इधर से जाएंगे, हमें जरूरत क्या है यार, हम इधर से भागलपुर के ऊपर से होते हुए निकल जाएंगे ना, यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ GMR पे बहुत स्टॉक रखा हुआ है, और गवादर पे भी बहुत सारा स्टॉक है हमारे पास। तो अभी रशिया से बात हुई है, ठीक है, अब देखे रशिया का वॉर का मूड क्या है अब, क्योंकि यूक्रेन के बाद से जो है पुतिन जो है थोड़ा सा गुस्से में है। रहिए भैया, हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो सीधा बिजनेस डील है, आप रोक नहीं सकते हो ना, मामला पैसे का है भैया। 100 ट्रिलियन US डॉलर जो है, क्या कहते हैं, नहीं नहीं, पेमेंट बहुत पहले आ गई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 100 ट्रिलियन US डॉलर इसराइल ने जो है अब से महीना भर पहले पेमेंट कर दी थी, 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमने वहाँ पे उससे पहले जो आर्सेनल भेजा था वहाँ पे, तो वो तो था ही है ही है वहाँ पे। और नहीं नहीं, वो इन्फेंट्री से रिलेटेड है, इन्फेंट्री से रिलेटेड है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसमें जो है T-90 है, अर्जुन टैंक्स हैं, नहीं नहीं, इंडियन टैंक्स हैं। पर ये जितने भी भारत में पहले जो टैंक्स बन रहे थे सारे के सारे अब मैं बनाता हूँ, नहीं मेरी कंपनी बनाती है, सब हमने टेक ओवर कर लिया। रिहाइन मेटल्स वाले बना रहे हैं, रिहान मेटल मेरी कंपनी है, BAE सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, और रिहाइन मेटल्स। तो रिहाइन मेटल्स जो कंपनी है वो बनाती है सब, हॉविट्ज़र है आपका, T-90 है, अर्जुन है, ठीक है, आपका अभी अब्राहम लिंकन है। तो ये सारे जो टैंक्स हैं ये रिहाइन मेटल्स वाले बना रहे हैं, कंपनी है, मैंने खरीदी थी, पहले कंपनी बना रही थी, बाद में मैंने ऑक्यूपाइड कर ली थी कंपनी। तो अब ये सारी चीज़ें वह ऑलरेडी क्या कहते हैं हमने ड्रॉप कराई है, और अच्छी खासी तादाद में कराई है, क्योंकि मामला जो है सिर्फ इतना सा था। देखिए भाई, आपकी वॉर स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, हमें तो बिजनेस से मतलब है सर। हाँ बिल्कुल है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरी बिजनेस पार्टनर हैं इसमें, पाकिस्तान के बहुचर्चित सेलिब्रिटी हैं रिहाम खान, मेरी बिजनेस पार्टनर है दशावतार में। तो तो ये सारा चीज़ जो है चलता रहता है इसमें। तो अभी जो है 30 मिनट के लगभग का टाइम जो है अभी पूरा होने वाला है। तो पहली स्क्वाड्रन वहाँ पे लैंड करेगी। अगर अगर एयरफील्ड ऑक्यूपाइड मिला हमारे को तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे ये लोग। हम तो साफ कह रखा है कि अगर कुछ भी इन्होंने दिक्कत करी तो फिर बहुत परेशानी होने वाली है। तो अभी जो है क्या कहता है B2 जाएंगे वहाँ पे, जो है पहले बीकन गिराएंगे। बीकन का मतलब ये है कि इसराइल के बीचों बीच एक एक डिवाइस होता है, उसे गिराने के बाद ब्लैक बॉक्स रखा जाएगा, और उसको हम ज़मीन के नीचे लगा देंगे। और फिर उस ब्लैक बॉक्स को सेंटर पॉइंट मानते हुए, वो पूरा ब्लैक बॉक्स जहाँ पे होगा वो सेंटर पॉइंट होगा, और उससे जो है आसमान में, जैसे 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 आप देख रहे हैं ना, ये मॉस्किटो नेट दिख रहा है आपको, ये ये ठीक इसी तरह का एक नेट बनेगा। शायद आपको डॉट नेट पढ़ा है आपने कभी, डॉट नेट सुना है आपने कभी? मैं डॉट नेट का मालिक हूँ सर। हमसे बड़ा नेटवर्क नहीं है सर किसी का। तो वहाँ पे जब वो बीकन गिराया जाएगा, फिर उसके बाद वो एयर डिफेंस, मतलब ये पूरा एयर स्पेस सिक्योर करेंगे। एयर स्पेस सिक्योर करने के बाद देखेंगे कहाँ से क्या थ्रेट है। नहीं, जेट्स तो इसराइल की तरफ फिर अब बढ़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ से नहीं, मेरे कई एयरफील्ड हैं, वहाँ से हमारे जेट्स निकल चुके हैं, और वहाँ पे जो है पूरा ऑक्यूपाइड करेंगे अब इसराइल डिफेंस को। और उसके बाद फिर वो 10 दिन तक वहीं रहेंगे, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें जो है आर्सेनल सप्लाई होना शुरू होगा। नहीं, स्पेशल रूट है हमारे पास सर, हमारा अपना ऑरेंज पैसेंजर रूट भी हमारा अपना, हमने अपना खरीदा हुआ है सर। ऑरेंज रूट हमारा है, बिल्कुल है। इसराइल में जो है क्या कहते हैं, ऑरेंज रूट हमारा है सर, वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाइए। और बाद में फिर हमने वाइट रूट भी खरीदा है सर, एयर रूट हमारे हैं। नहीं, पाकिस्तान कौन होता बोलने वाला? हम उनके भाई, आप इंटरनेशनल एयर रूट पे भी उड़ रहे हो, हम भी उड़ सकते हैं। आप इंटरनेशनल एयर रूट अगर अपने एयर डिफेंस की वजह से ब्लॉक करने की कोशिश करते रहो। हमने एयर रूट खरीद लिया, बिल्कुल खरीदा मैंने, ऑरेंज रूट अपना खरीदा है सर। पाकिस्तान के ऊपर से 100 बार जाते हैं हमारे यहाँ जहाज, जो मर्जी कर लो सर, पैसा हमने दिया हुआ है, पैसा हमने दिया हुआ है। नहीं, पाकिस्तान को तो हमने एक ही दिन में समझा दिया था, हमने कुछ नहीं करा। वहाँ भी एक जो है फेक कैसेट गिरा दी थी न्यूक्लियर की, मैंने कहा डिफ्यूज़ कर लो इसको सर, साफ सीधी बात है। नहीं, न्यूक्लियर नहीं गिराते हम, तो डमी बम गिरा देते हैं, करता रहा डिफ्यूज़ भैया इसे। तो उस दिन के बाद से फिर कोई बात ही नहीं है। वो उन्होंने जो है, जब डील की बात हुई
तो अब क्योंकि हम तो भाई बिजनेसमैन हैं, दशावतार मेरी कंपनी है। अब जब बात हुई क्या कहते हैं आर्म्स डीलिंग की, तो पाकिस्तान ने भी अप्रोच किया कि आप हमें भी आर्सेनल बेचिए। अब मेरे साथ एक समस्या ये आ रही थी, क्योंकि मैं तो एक तो इंडियन हूँ, भारत से हूँ, और दूसरा क्या कहते हैं बिजनेसमैन हूँ। अब बिजनेस लॉबी में नियम ये है कि अगर कुछ चीज़ आप बेच रहे हो तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। पर यहाँ इंडियन आर्मी वाले जो है वो वैसे ही मेरे से जो है खुंदक खा के बैठ गए, यार कहीं पाकिस्तान को हथियार ना बेच दे। तो ये तो ऑब्जेक्शन होती है। और हमने कहा देखो सर ऐसा है, हम तो बिजनेसमैन है, अब बुरा मानो चाहे भला, वो पेमेंट कर देंगे, हम हथियार दे देंगे। उन्होंने पेमेंट करी नहीं कि हमने हथियार सप्लाई कर दिया। जब बात हुई तो उन्होंने जो है कोई 17 लाख करोड़ के लगभग और 15 लाख और 17 लाख करोड़ के लगभग जो है आर्सेनल की बात करी थी। उन्होंने ठीक है हम भिजवा देते हैं। अब मैंने तो जो है क्या कहते हैं 50 के लगभग जो है S-400 और दूसरी मिसाइल की जो है व्हीकल्स मैंने भिजवा दिए। पेमेंट सर इन्होंने करी नहीं। पेमेंट का टाइम जो है 20 दिन के लगभग भी है, पेमेंट नहीं भेजी इन्होंने। हमारी टीम ने कई बार अप्रोच भी है कि भाई आर्सेनल आ गया तो क्या मतलब है, ये थोड़ी आप फायर कर लोगे, मतलब वो पता नहीं कौन सी वो देगा फला देगा डिग, वो सब नहीं होता सर, यहाँ साइन करो ना आप। अब उन्होंने जब साइन करने की बात आए तो फिर वो इमरान खान डिनाई करने लग गया, उधर से कोई दूसरा कोई बात नहीं कर रहा है, तो सर ये सब नहीं होता ना। बाजवा जी आए जब उन्होंने जब सारी चीज़ें देख ली, कह रहे यार इनसे तो वॉर की बात ही भी करनी बेकार है, JSR सिक्योरिटीज़ वाले हैं ये, 10 अवतार वाले ने ये, कह रहे इनसे रहना, तो इन पर आर्सेनल की कोई कमी नहीं है, इनसे कहाँ वॉर लड़ रहे हो आप। हम तो वॉर लड़ते भी नहीं है सर। JSR सिक्योरिटीज़ 10 अवतार तो वॉर लड़ती ही नहीं, तो हमारा तो सप्लाई का काम है सर, बिजनेस है ना सर। अब ये जितने मेरे JSR सिक्योरिटीज़ और 10 अवतार के लोग हैं, ये वॉर थोड़ी लड़ते थोड़ी हैं ये। अब सामने जिनसे मिलने जा रहे हैं वो उनके हाथ में भी कोई फूलों की माला तो होती नहीं है। ठीक है, हुआ कई बार आर्म्स डीलर जाते हैं पाकिस्तान में, बंदा पकड़ के बैठा लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, बंदे को पकड़ के बैठा लेंगे, उसके बाद क्या कहते कहेंगे जी हथियार भी छोड़ दो। एक बार हमारे साथ करने की कोशिश करी तो थी, हम तो बंदे उठा के ले गए थे इनके जहाज में साथ ही उठा के ले गए, और उसके बाद वहाँ छोड़ दिया उसको ले आकर के सऊदी में अपने आप चला जियो तो ये आदत तो इनके, तो उन्होंने पेमेंट करी नहीं, फिर डील हुई भी नहीं, फिर 40 लाख करोड़ तक की गई थी पेनल्टी तक। उसके बाद फिर हमने जो है क्या कहते हैं जब इंटरनेशनल उसमें जो है आर्म्स डीलर की मीट में हमने साफ बोल दिया था, क्लियर कट, भाई हम पाकिस्तान के साथ तो डील करेंगे नहीं भाई। कल को आप ये मत कहना कि बिजनेस लॉबी में हो आप मना कैसे कर दो, क्योंकि अगर हम मना कर देते तो फिर हम ब्लैक लिस्ट हो जाते ना, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आपने जो है जब इन्होंने मना कर दिया, पेमेंट इन्होंने करी नहीं, मैंने अब टेंशन थोड़ी सी कम हुई। वैसे कोई चिंता नहीं है, इंडियन आर्मी वाले कितने शोर मचा ले, हम तो कर देते सप्लाई, हम तो बिजनेस मैन है सर। आपको मना किया हमने कभी नहीं ना, बस फिर अभी जो है जी कंपनी का नाम सुना होगा, जी का खरीदी मैंने, जनरल इलेक्ट्रिक खरीदी, और भारत का जो तेजस तेजस है ना, तेजस अब जी वाले बना रहे हैं। और क्या, अब इनको बोला हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स वालों को, तो सप्लाई नहीं है। पहले हमने जो है 800 जेट्स ऑर्डर किए, वो बनाने में इनको बड़ा टाइम लग रहा था, अब जी वाले बना रहे हैं, हमने बना कर तैयार कर दिया। अमेरिका का जो क्या कहते हैं वो फ्रीडम करके कुछ है, आप क्या कहते हैं ट्रेनिंग जेट जो है, वो भी बना रहे हैं हम। F-35 पे अब हम बना रहे हैं, नहीं लॉकहीड मार्टिन नहीं, अब हम लोग बनाते हैं 10 अवतार में। नहीं मैन्युफैक्चरिंग भी है, धान्य धान्य मशीन एंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना, मतलब अगले साल 2023 मार्च के लगभग से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। जेट्स जेट्स है आपका, सौर्य क्रूज लाइनर है, ध्रुव एरोनॉटिकल्स है, नहीं ध्रुव एरोनॉटिकल्स के जेट्स अभी हम नहीं बेच रहे, क्योंकि उसके डिज़ाइन ही जो है ना बहुत कॉस्टली हैं। वो तो मतलब उसका सेगमेंट ही अलग है, ध्रुव एरोनॉटिकल्स शौर्य क्रूज लाइनर में भी है। ठीक है, धान्य मशीन एंड टूल्स वाले जो है मेरी बिटिया के नाम पे है, धान्य के नाम पे, और ध्रुव जो है क्या कहते हैं मेरा बेटा जो है उसके नाम पे कंपनी है, शौर्य क्रूज लाइनर जो। तो अभी जो है गवादर जो अभी हमने परचेज़ किया, ये चाइना से परचेज़ किया हमने, नहीं F-35 यूनिट जो है क्या कहते हैं हम और भी कई जगह लगा रहे हैं। नहीं अब F-35 है उससे लेटेस्ट आ चुका है, अब तो बहुत कुछ है। पहले अब ये जो है आपका 4.3 ट्रिलियन US डॉलर का है,
$4.3 ट्रिलियन। नहीं नहीं, इसराइल से पेमेंट तो हो गई थी। $100 ट्रिलियन तो उन्होंने, मतलब जैसे अभी बात हुई, 3 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट उन्होंने क्लियर कर दी, रिफ्लेक्ट करा दी। हो गया। अब तो अब क्या चिंता है, अब क्या चिंता है, अपना पकड़ो सर चाबी। नहीं नहीं, हम ट्रूप्स भी देते हैं, ट्रूप्स भी है मेरे पास, 9 करोड़ रेडी ट्रूप्स है मेरे पास, ट्रूप्स भी देते हैं हम, ट्रूप्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं। वॉर के ट्रूप्स होते हैं, उसमें हमारे हर देश के लोग होते हैं। क्यों, पाकिस्तान के भी है मेरे पास, क्या बात करती है। 25 लाख लड़के पाकिस्तान से आए थे मेरे इसमें, JSR सिक्योरिटीज़ में, बिल्कुल है। नहीं नहीं, कोड अगर आप पूछोगे ना आर्मी के अंदर, तो वो JSR सिक्योरिटीज़ बोलेंगे। चाहे वो रशियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे जूइश हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, वो सीधा बोलेगा JSR सिक्योरिटीज़। नहीं, जूइश को हम वोट नहीं लड़ने दे रहे हैं। वजह है, उन्हें बता तो दिया आज। उनकी उनकी संख्या कम है धरती पे। हमने उनका, भाई सर आप एडमिन संभाल लो, वॉर फ्रंट पे लड़के उतरेंगे। और सिख, भारत में सिखों को, और वर्ल्ड में जो है ज्यूइशों को वॉर, अब मैम JSR सिक्योरिटीज़ में जो है वॉर ट्रेनिंग नहीं है। नहीं नहीं, उनको जो है सीधी ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन की है, और नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग है। नहीं, संख्या कम है सर, माइनॉरिटीज़ हैं, यही वजह है। वो हम संभाल लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। नहीं नहीं, मामला मामला सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ है। मामला जो है सिर्फ पैसे से जुड़ा होता है, भाई आपने टाइम पे पेमेंट कर देनी है, हमने काम कर देना है, समझे। अब पेमेंट नहीं हो रही है तो फिर काम कौन करेगा सर, पेमेंट नहीं है तो काम कौन करेगा। सप्लाई दशावतार में सर, आप जब कहो जितनी, अभी अभी ट्रक से जो है व्हीकल्स के लिए यूक्रेन में बात चल रही है, इंडियन आर्मी के लिए, वो हमने क्या बात करी थी सर, मतलब $300 ट्रिलियन की डील हमने इंडियन आर्मी के साथ फाइनल करी हुई है। बिल्कुल करी है हमने, बिल्कुल करी हुई है। सप्लाई चल रही है, यूक्रेन से हमने व्हीकल्स जो मंगाए, बिल्कुल है, 10 10 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स मंगाए हमने यूक्रेन से। नहीं, वर्ल्ड में बहुत बहुत आर्म्स डीलर है। मेरा पेमेंट का सिस्टम होता है सर, मेरा पेमेंट है सर। अच्छा, नहीं नहीं, बहुत पहले मेरे मूड में था, मैंने यार पैसा कमाना है तो आर्म्स डीलिंग में उतरते हैं। पैसा कमाना है तो आर्म्स डीलिंग में होता है। स्विस 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 आर्मी नाइफ कंपनी मैंने खरीदी। जिलेट, नहीं, तलवारें बनाने की कंपनी जो है जिलेट। ये बिजनेस ही ऐसा है, इसमें डील इतनी भयंकर होती है ना। नहीं, अभी तो पता नहीं है इसराइल से $100 ट्रिलियन, तो मतलब ये समझ लो कि बस टोकन मनी ही थी। पेमेंट के लिए जब उन्होंने जब बोला 3 घंटे में पेमेंट रिफ्लेक्ट करा दी, मतलब अब चिंता नहीं है सर। भाई आर्म्स डीलिंग है, फर्स्ट फर्स्ट डील में होती है। अब उनसे उनके उनके जो पास जो है ये क्या नाम है, जो इनकी एयरफोर्स है, तो और उनके पास कैमोफ्लेज यूनिट नहीं है, तो आप कैमोफ्लेज यूनिट बना के देंगे उनको। नहीं, कैमोफ्लेज नहीं है उनके पास। बहुत पहले बहुत पहले से मामला चल रहा था। तो भारत में जो है क्या कहते हैं, मोदी जी ने जो है एक ऐसी बात कर दी थी जिससे कि इसराइल को भी जो है थोड़ा सा झटका लगा था। वो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वॉकआउट कर गई है किसी मामले में। तो उस दिन के बाद से जो है, मतलब पाकिस्तान मोदी जी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था,
और मोदी जी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इंटरनली तो ये हकीकत थी, और इसीलिए यहाँ से पाकिस्तान के साथ इन्होंने ब्रह्मोस की डील तय कर दी। रूस ने मना कर दिया। रूस ने कहा ये डील नहीं हो सकती है, ऑब्जेक्शन हमने भी उठा दिया। एक वजह थी उसके पीछे, क्योंकि रूस में जो है ब्रह्मोस पे पैसा हमारा लगा हुआ सर। पेमेंट नहीं कर रहे ना सर, पेमेंट नहीं कर रहे हैं सर। नहीं सर, हम तो ब्रह्मोस की फ़ोटो नहीं रखने देंगे उनको। नियम होता है। अब तो ब्लैक कलर की ब्रह्मोस आई है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ब्लैक कलर की है, बिल्कुल है। मिसाइल्स की डील नहीं करते हम। नहीं नहीं, वो हमारी अपनी यूनिट है। एयर डिफेंस सिस्टम में हम देते हैं, वो हमारी अपनी मिसाइल्स है। मिसाइल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया ना। सवाल ही नहीं उठता कोई भी देश आपके देश पे हमला कर दे, अब आराम से रहो ना। वर्ल्ड वर्ल्ड में इसराइल की असेट सिक्योर करने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी ना। सब जे सर सिक्योरिटी सर, वर्ल्ड में जहां भी इसराइल की असेट होगी ऑर्डर साइन कर देंगे, हमारी टीम पहुंच जाएगी सर। है ना सर, 9 करोड़ की स्ट्रेंथ है मेरी, 9 करोड़ का ट्रूप्स है मेरे पास, रेडी ट्रूप्स है। मतलब 20 लाख 25 लाख जब पैरा ड्रॉप होना शुरू होते हैं ना, एक इलाका पूरा भर देंगे मिनट में। चलो भैया चालू। आर्सेनल की असेट की कमी नहीं है, रेडी स्टॉक एकदम भरा हुआ रखते हैं एकदम। ध्रुव एरोनॉटिक्स, ध्रुव एरोनॉटिक्स 9th जनरेशन मैग्नेटिक। नहीं नहीं नहीं, उसमें वो चा का सिस्टम, चक्के का सिस्टम खत्म। ध्रुव ध्रुव वाले शुरू होंगे तो फिर चा से चक्का वाला सिस्टम नहीं है, मैग्नेटिक है। मैंने डिजाइन किया। उसके वो जो उसका जो लैंडिंग पैड है मैग्नेटिक है, एयरपोर्ट जो है, रनवे जो है उसका मैग्नेटिक है। बिल्कुल सही। 2024 के फर्स्ट मंथ से जो है ध्रुव एरोनॉटिक्स डिलीवरी शुरू करेंगे। कोशिश तो पूरी है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, मतलब वो जेट्स ऐसे हैं कि एयर स्पेस में भी चले जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आपने अगर टेक ऑफ किया तो सिर्फ आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहेंगे, आप चाहे तो यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाएं उससे। 9th जनरेशन में शुरुआत ही हमने 9th जनरेशन में, अभी तक ये अभी तक सिक्स तक पहुंचे हैं। हमने तो शुरुआत ही 9th में करी है, 9th जनरेशन में। बनाए हमने, बनाए पाकिस्तान में हमने 25 एयरफील्ड बनाए हैं। बिजनेस है सर, मना नहीं कर सकते। तो पहले ही बात तय हो गई थी वहाँ पे भी, जब ओपेक से भी बात हुई तो उन्होंने भी कह रही थी बिजनेस के लिए मना नहीं कर सकते। अब आप अपनी पॉलिटिकल लॉ भी आप समझो, सीधी सुथरी बात है। पैसे की लेनदारी तो है ना भाई, पैसा तो बनता है ना, बात खत्म है। अब उससे हमें मतलब नहीं है आप पॉलिटिकली क्या न्यूज़ चला रहे हो। आर्सेनल हमारा है तो हमारा है। अब जैसे भारत में मोदी जी ने डिनाय लिखा हुआ है सर, आप पर्चा उठा के पढ़ो ना, डील डिनाय लिखी हुई है। तो जी न्यूज़ में आप कैसे दिखा दोगे क्या कहते हैं मोदी जी ने 400-600 मंगाई है, तो फिर बात नहीं बनती ना, नहीं होता ना सर। 10 अवतार का सामान है तो है ना, हमारा सामान है सर, हमारा है। वो इंडियन आर्मी में जेएसआर सिक्योरिटीज अगर क्या कहता है यूनिट है तो मोदी जी ने डिनाय लिखा है सर, पढ़ो तो सही आप। राफेल में हम पढ़े नहीं बीच में, आप ले खरीद लो राफेल। वहां पे राफेल की डील रुक गई इनकी, एयरफोर्स वाले यहाँ परेशान हो रहे थे। राफेल की डील में जो है वहां जांच खुल गई सर। ये तो यही होता है। हम तो सीधा विजिलेंस क्लियर डील देते हैं सर, विजिलेंस क्लियर है। वर्ल्ड बैंक से पेमेंट आती है, वर्ल्ड बैंक में पेमेंट जाती है, बात खत्म। सीधा सा नियम है, हम कोई इफ और बट नहीं रखते। मोदी जी ने राफेल डील की बात हुई, फ्रांस में राफेल की जांच खुली हुई है सर। राफेल डील के अंदर मोदी जी का नाम आया, राजनाथ सिंह का नाम आया, ये बात यहां से शुरू होती है सर।
उस दिन के बाद से इंडियन एयरफोर्स को जो है जेट्स की डील नहीं हुई। नहीं हुई तो सर हमारा अपना आसन खड़ा, आप ऐसे कैसे हमला कर दोगे? आप गेमिंग वर्ल्ड में खेल लो, क्या दिक्कत है? ये कोई तरीका नहीं है सर। ये कोई अब इमरान खान मुझे गाली देगा, जवाब मैं ही दूंगा ना सर। बस जब इमरान खान से बात हुई बैठ करके, आपने क्या कहते हैं अपनी बिटिया की शादी कराई मुझसे पॉलिटिकल डील में, मैंने कुछ कहा नहीं, तो भाई साहब लड़की कहाँ है? डील है तो है ना, फिर बैठ के बात करो ना भैया। फिर मोदी कौन है? तो जाओ फिर मोदी से ले लो सामान, मैं साइन नहीं कर रहा ना डील। यही बात पाकिस्तानी आर्मी से हुई थी। वेर इज मरियम नवाज शरीफ एंड वेर इज रावी रावी पीजुदा? नहीं है तो बात खत्म ना। वो इस घर में है तो उतनी मिसाइलें वहां लगा दूंगा मैं। कौन इंडियन आर्मी? मैं नहीं सुनता ना सर, बिजनेस है बिजनेस। मैंने भेजा था रेहाम खान को पाकिस्तान, 10 अवतार के ओनर है वो। उस पे इमरान रेहाम खान पे इमरान खान ने हमला करवा दिया। पागल हो गया है क्या? वो कहाँ पर मूड खराब कर रहा है? मैंने जानबूझ के भेजा था रेहाम को, मैंने कहा आप जरा एक बार पाकिस्तान होके आओ। डील है मैडम, पैसे की, बिजनेस के लिए कौन नहीं भागता? और करना क्या है हमें? हम तो दौड़े फिरते हैं बिजनेस के लिए दिन रात, और काम ही क्या है? रेहाम आ गई है, बात हुई है, फिर उसको जो है आप दिमाग लगा रहे हो। नहीं चलता ना ये सब। नहीं है तो फिर साइड हटाओ, फिर बात खत्म है। फिर नहीं चलता ना। अब ऐसा कोई बिजनेस नहीं। कौन बाजवा साहब, कौन आसिफ मुनीर? बी प्रैक्टिकल, बी बिजनेसमैन। यहाँ धमकी नहीं चलती सर, यहाँ नहीं चलती है। वहाँ गए हो रूस में, पुतिन को देखा कभी डील का? पुतिन का यूक्रेन का मामला कुछ भी हो, बिजनेस की डील अलग है। अब यूक्रेन को जो है क्या कहते हैं, जेलेंस्की को एक बार को लगा कि इसने रशियन ऑयल फील्ड खरीद लिया, और उसे जरूर इसको भी लगा कि यार क्या कहते हैं। मैं कहा सर देखो, पॉलिटिकल डील अलग होती हैं, आर्म्स डीलिंग अलग है, ठीक है, और आपका जो क्या कहते हैं एफएमसीजी डील अलग है। अब मुझे मुझे रिक्वायरमेंट है ना उतने ऑयल की, मेरी एयरफोर्स इतनी बड़ी है। अब मैं सिंपल सिंपल जो है क्या कहते हैं सऊदी से क्या कहते हैं ऑयल पे कितना डिपेंड करूंगा? रशिया रशिया में मैंने बात करी, पुतिन से बात हुई, पुतिन ने ऑब्जेक्शन लिया, कहता कि यार बहुत मुश्किल है। मैंने एक ही बात की, मैंने कौन सा मैं आपका ऑयल फील्ड उठा के ले जा रहे हैं? उन्होंने साइन कर दिया, छोड़ना, फिर बात खत्म है। रूस का खजाना भर दिया हमने खजाना भर दिया रूस का। तो हमारे को जरूरत है ना सर, एयर फ्यूल चाहिए होता है ना, सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। आप समझो ना, आप किस तरह से डील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, समझ में आ गई? अच्छा आर्म्स डीलिंग तो आर्म्स डीलिंग है ना, साफ सीधी बात है। वॉर वॉर जो है हथियारों से ही लड़ी जाती है भाई साहब। मैंने तो नहीं रोका, आप पेमेंट नहीं भेज रहे हो, ऊपर से जो है आपने प्रेशर बना के रखा है वहाँ पे। कम से कम आपके आपके देश से हमने 4,000 से ज़्यादा हैकर्स को जो है इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में लिया है। सर आप इनको समझाओ सर, मोबाइल फ़ोन से हैक हो रहे हैं, नहीं चलता ना ये सब। अब तो दिक्कत में आप आओगे, मैं नहीं आऊँगा। तो उतना आर्सेनल मंगाने के बावजूद आप पाकिस्तान में कह रहे, फिर उसके बाद गवादर पे खड़ा हुआ, फिर चीन ने जो है गवादर हमें दे दिया, हमने खरीद लिया 7 लाख करोड़ रुपए में। बस 7 लाख करोड़ पाकिस्तानी चाइनीज़ रुपीज़ में गोल्ड पेमेंट हो गई। इसमें दिक्कत कहाँ है? उसमें दिक्कत कहाँ है? ये कह रहे भाई गवादर खरीद ले, गवादर तो वहीं पे है, ओनरशिप मेरी है। नहीं, बिजनेस से कैसे रोक लोगे? आप मेरे से कह रहे हो कि भाई आप जो है मेरे को 1,000 जो है फाइटर जेट्स दो। सर मैं 1,000 में शुरू में जो है आपके पास 5 स्क्वाड्रन भेज दूंगा सिक्योरिटी के तौर पे, बाकी वहीं बनेंगे। आप बनाने नहीं दोगे वहां पे, मैं कहाँ से उठा के लाऊंगा सर? हर एक कंपनी की एक कैपेसिटी होती है, हर एक प्लांट की कैपेसिटी होती है। मैं फाइटर जेट्स बनाने का प्लांट वहां लगा दूंगा। अब F-35 भारत में बन रहे हैं, जितनी जरूरत है हमारे 10 स्क्वाड्रन मंगा ली, सिक्योरिटी में लगा रखी है, बाकी भारत में बन रहा है सब कुछ, बिल्कुल बन रहा है। अब यहाँ बनता रहेगा, कंपनियां बना लगा करके दे दी, अपना काम कर रहे हैं वो लोग। ऐसे ही पाकिस्तान में होगा। अब इसराइल के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, स्टार्टिंग सप्लाई हम कर देंगे, उसके बाद इसराइल में बनना शुरू हो जाएगा सामान। वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के लोग काम करते रहेंगे, हम लोग अपना देखते रहेंगे, बस इतना सही होता है। अब आप लोग किस तरह से बात करते हो, क्या डील है भैया? देखो इससे तो मतलब है नहीं। अब यूएन के अंदर मोदी जी अगर वॉकआउट कर गए तो भैया उसका जवाब आप दोगे ना, मैं थोड़ी दूंगा सर।
अब इमरान खान जो है भारत के अंदर जो है, अगर पाकिस्तान इनको ज़्यादा कुछ समझ रहा है तो भाई इनसे हथियार ले लेना। देखता हूँ किस्मत दम है। राफेल ला पाए ये। भाई साहब आज भी अगर कैलकुलेट कर लो तो इंडियन आर्मी जो है कुछ नहीं है उसके पास। इंडियन आर्मी के पास कुछ नहीं बचा हुआ है, जो मोदी जी के कहने के बाद है। साफ डिनाई लिखा हुआ है। डील डिनाई कर दी 10 अवतार से, कर दी तो आप घर जाओ। हम तो हमें नहीं रोक सकते सर, मसल पावर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है मसल पावर सर। मसल पावर है सर। कहा तो कहा, कहा तो कहा। कौन मोदी और कौन राजनाथ? मैंने मैंने डिनाई करवाई थी डील, बदमाशी है हमारी। सुखोई की डील मैंने मना करवाई थी राजनाथ से, नहीं करेगा रूस। बदमाशी है, बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस वर्ल्ड है। तो हैकिंग पे उतर गए। लो अब मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ मैं। लो ना। अरे छोड़ो ना सर, एक वार्निंग शॉट में तो क्या कहते हैं दिमाग ठिकाने लग गया। आप मुझे मत छेड़ो, मैं आपको नहीं छेड़ता। बात खत्म, बात खत्म। ले लो जाके इमरान खान से, बोलो ना मोदी को जाके कर ले डील। मैंने सुबह बोली जो बात बोली, अब मैं आपको बताता हूँ। सुबह जो बात मैंने बताई आपको, सीधे अक्षरों में कह दिया मोदी के बारे में। मैं कहा इतने देश गया भीख मांगने के लिए, मिला पैसा तुझे? घंटा नहीं मिला तुझे कुछ। कुछ ये घंटा भी दिखा देता अपना। अब चला ले न्यूज़। दिलवा बोल रहा है सुधीर चौधरी को दिलवा देगा हथियार। अब 2 कौड़ी का न्यूज़ रिपोर्टर है, यूं बात करते हैं सर हम। अब वो पता नहीं हम लोग हैं कौन। बता तो रहा हूँ, पता नहीं है अभी न्यूज़ चैनल वाला। 2 कौड़ी का तो न्यूज़ रिपोर्टर है। अब फोटो खींच न्यूज़ बना, जाए यहाँ से दफा हो। करवाइयो डील, मैं भी देखो कितनों को जानता है। करवाना डील, क्या हो गया? बस फुस हो गई ठंडी सबकी। कहाँ गया प्रभु चावला, कहाँ गए गलबज्जी करने वाले न्यूज रूम, कहाँ गया जीडी बख्शी? कराइयो डील। हाँ है बदमाशी मेरी, लेके दिखाइयो सुखोई। बिल्कुल है, पैसे वाले हम, पैसे वाले हम, पैसे वाले हैं। जा फिर लड़ लड़ चुनाव। हमें तंग करेगा ना तो मिनट में 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ की पेनल्टी ठोकते हैं मिनट में। नहीं तो अपना लड़ता रहा चुनाव, रोका तुझे कुछ? वहां जाके मत बोलियो तू, मारेंगे। और क्या करा था आसिफ मुनीर ने, बताइए जरा। मोदी गया मिलने। हाँ कहीं मीटिंग के लिए, या आसिफ मुनीर ने बैठने के लिए कुर्सी पे, मोदी को कह दिया उसने खड़ा रहा चुपचाप। अब समझ गया, ये है धरती। मौका देखते बेइज्जती कर दी ना। समझ में आ रही है? गलत लोगों से भिड़ गया तू। ये एसपीजी वीडियो और अफीम खा के और ये सब करके बिजनेस नहीं होते वे। जिस मर्जी को बुला ले तू, जिस मर्जी को बुला ले तू, जिस मर्जी को। मैं बता रहा हूँ ना इंसिडेंट आसिफ मुनीर ने क्या किया था। तभी तो मिलिट्री जनरल बना पाकिस्तान का, ऐसे ही थोड़ी बना। एक मीटिंग में कहीं पे मुलाकात हुई, ये नहीं पता कहाँ हुई थी, एक मीटिंग में, ऐसे ही थोड़ी बना आसिफ मुनीर। कैसे बना पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल, मैं बताता हूँ। मोदी मिलने गया होगा, कुर्सी पे बैठने लगा, आसिफ मुनीर ने जो है कुर्सी हटा दी, खड़ा रहा चुपचाप। हो गई बेइज्जती। बताया जरा कहाँ गया इसके एसपीजी गार्ड्स इसके। बेटा कुर्सी खरीदनी पड़ती है, समझ में आ गई? खरीदनी पड़ती है, पैसा है तुम्हारे पास, अबे रिजाइन कर, दफा हो यहाँ से। समझ में आ गई? बचा ली इंडियन आर्मी ने इज्जत पाकिस्तान के आगे, भारत के प्रधानमंत्री की। और तुम क्या रहे हो, बताइए भैया, मीडिया में बोलोगा? यूं बनाया आसिफ मुनीर। सुबह मैंने आसिफ मुनीर की धरती लगा दी। अब बाप से नीचे बात नहीं करता, सीधा बाप ही बोलता, कहता किस कहाँ पंगे ले लिए इससे मैंने। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में उठा लिया उसको, 3 घंटे पूछताछ करी है कोई मामला? ऐसे ही सेलेक्ट नहीं हुआ आसिफ मुनीर। मोदी तू जहां जाएगा ना वहां पता लोग क्या कहेंगे, चल बे आगे बढ़। बेटे मेरे से पंगा लेने का ना यही नतीजा होता है।
मेरे एक इशारे पे जो है ना पुतिन ने राजनाथ को बोला था आप जाइए सर। अब पुतिन को असली खेल समझ में आया। जब रूस का खजाना भर दिया ना हमने रशियन ऑयल फील्ड की डील करते के साथ, अब रखो ना सर पेमेंट। हम कौन सा हम क्या फील्ड उठा के ले जा रहे? नहीं, अरे वो तेल ही तो चाहिए यार। सीधी बात है, यूक्रेन का मामला था, यूक्रेन सिक्योर करना था हमारे को, वजह है ना, हमारे बिजनेस है यार। लड़ना लड़ ले, वॉर लड़ने से मना नहीं है। जी भर के वॉर लड़, हम तो कभी भी जेएसआर सिक्योरिटी से काम खत्म, रशियन ऑयल फील्ड सिक्योर करते के हम लोग बढ़ जाएंगे। लड़ता रहा बच्चे जी भर के, यूक्रेन उसके मिसाइल फेंके, वो उस पर मिसाइल फेंके, हमें क्या मतलब, बता दे कमी कहाँ है। तो जेएसआर सिक्योरिटीज वाले में सप्लाई का काम है यार। कुर्सियां सप्लाई करवा दूं बोल तो। मैंने जो है भाई साहब, वर्ल्ड में जो है कुर्सियां मैंने खरीदी हैं। ये सब परेशान हो रहे, कह रहे आसिफ मुनीर जो है, हाँ, पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल कैसे बन गया? लाइन में तो आसिफ गफूर था। हाँ, गफूर गफूर ने बनना था, गफूर बन जाता, इंडियन आर्मी को दिक्कत थी। वो छोड़ तो वो आते ही अटैक कर देता। वो मैं जानता हूँ ना, गफूर पता है किसका चेला है? नहीं पता? इसका परवेज मुशर्रफ का। मुनीर ने ऐसी बेइज्जती करी है ना इसकी, मेरी हंसी नहीं रुक रही तुमसे। ये जो है, ये परवेज मुशर्रफ से भी 4 कदम आगे निकला। ये पता नहीं है खेल अभी। लगा पैसा बोल, लगाया पैसा बोल, लगाया ले ना, क्या बात कर रहा है तू? अगर अगर भाई साहब बात गलत निकल जाए ना, ये ले, लगाया 1 रुपया। 90 लाख करोड़ रुपए वैल्यू चल रही है 1 रुपए की, लगाया 90 लाख करोड़ रुपया इस बात में। बता कौन है मेरी बात को डिनाई करवा दे। और लौंडा लेकर घूम लो। अबे मिलिट्री जनरल्स की मीटिंग प्रधानमंत्रियों से होती है? अच्छा जी, मुझे नहीं पता। मेरी टीम पता है, मेरी टीम जब पहुंचती है ना 10 अवतार वाली, पहले रेजर्स बटालियन वाले होते हैं। अब वो पहले हाथ जोड़ लेते रह थे यार, आर्म्स डीलर है, हाथ वाथ काट के रख देंगे टेबल पे। अब बन गया आसिफ मुनीर पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल। गुलेल खरीद लियो आसिफ मुनीर। मिलिट्री जनरल बन तो गया, हथियार तो है नहीं। गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। तुम्हें किससे नहीं पता अभी यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? नहीं नहीं, वॉर में टाइम है अभी। नहीं नहीं, पहले कुछ एक देशों को सिक्योर करेंगे, यूक्रेन को सिक्योर करा है, अब सेकंड में इसराइल है, अब और कुछ एक जगहों को सिक्योर करना है वर्ल्ड में। वॉर तो खैर धरी पड़ी है, नहीं जर्मनी फ्रांस, पता नहीं ना वो बैटल फील्ड कहाँ क्रिएट होती है, सफोकेशन कहाँ बन रहा है, नहीं मालूम ना। इंडिया में कहाँ बैटल फील्ड बनने वाला है, एयर डिफेंस सिस्टम लग गया। यूक्रेन, इसराइल और इंडिया में एयर डिफेंस सिस्टम लग गया है, फायदा नहीं है। मैं वीडियो देख रहा था, मैं तेरी हंसी की बड़ा कलाकार आदमी है। बाइडन ने तो ऐसी हरकत कर दी, पुतिन मुंह, पुतिन वीडियो देख रहा, पुतिन मुंह घुमा रहा, तेरा यार हद हो गई यार। बाइडन 4 कदम आगे निकला, चाय नहीं पीने दी। हरकत देख रहा क्या कर रहा है। तो वो गलती इनकी है, मेरी थोड़ी है, गलती इनकी है। ऐसे नहीं होता भैया। नहीं, वो देखना पड़ेगा ना सफोकेशन कहाँ हो रही है ना। हम जेएसआर सिक्योरिटीज वाले वॉर थोड़ी लड़ते हैं, हम नहीं लड़ते भैया वॉर। आर्म्स डीलिंग का काम है, सप्लाई का काम है हमारा, और कुछ नहीं है। रेस्क्यू का काम है हमारा बस। नहीं नहीं, हम तो वॉर जोन रोक देते हैं, कहीं से रेस्क्यू होती है तो वॉर जोन रोक देते हैं हम।
मिलिट्री जनरल्स की मीटिंग में जाने से पहले ना कुर्सी खरीदनी पड़ती है। समझ में आ गई। आसिफ मुनीर से मीटिंग का पैसा तय होगा पहले ही। ऐसे नहीं मिलते किसी से भी, सबसे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मेरे से मिलने तक का पैसा तय है। आज तक कौशिक से पूछियो। आज तक कौशिक करी आपसे, आपसे मिलना है, मीटिंग है, ठीक है मैं मिल ले भाई। अब उसकी हालत देख के कहा, मैंने कहा चल ठीक है, 10,000 रुपये बहुत है। तू कहा 10 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ के, 10,000 रुपये बहुत है, उस पर भी पता है कितनी महीने में आखिरी में बचेंगे कितने। अरे 1 घंटे का इंटरव्यू है, एक ही दिन काउंट होगा मैडम, 1 घंटे का इंटरव्यू है तो। वरना वीडियो अपलोड कर ले, इसी से काम चला लो करीबो।